students, and welcome to our new session of English. As you know that we are in our chapter of grammar, that is of passive voice, and today here we are with one new topic. But today's topic is how to make passive voice with let, L-E-T, let, and W-H-O, who. जिस सेंटेंस पे लेट और हु का प्रयोग होता है उससे कैसे आज पैसिव बनाएंगे वो हम सीखेंगे. So first, let us check the sentence with let, let. Now, see the sentence here. The sentence says that let him take decision. Sentence is let him take decision. उसको कोई निर्णय लेने दो. Now, I have made passive of the above sentence, that is, let the decision be taken by him. The answer is the passive voice of the above sentence is let decision be taken by him. Now, how I made a passive of this? First, you have to bring the let at its place. देखिए एक्टिव सेंटेंस में भी let अपनी जगह दिया है फर्स्ट. पैसिव में भी वो फर्स्ट ही आएगा, वो अपनी जगह रहेगा. देन ऑब्जेक्ट, अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट every passive sentence starts with an object. So here our object is decision. How to find an object मैंने आपको सिखाया था by asking what or whom. The active sentence. Active sentence को यहाँ what पूछो. What he should take decision. The answer is decision. तो decision आपका object हुआ. उसको let के बाद रखो. Let पहले आएगा. Let decision, then BEB will be added. Remember, in all the sentences of let, BEB will be added. So let decision be taken. Verb अपनी जगह उतरेगा, लेकिन verb will turn into its PPT form. Let decision be taken by him. Him यहां आ जाएगा लास्ट में, वो हम पहले भी सीख चुके हैं. सब्जेक्ट है वो लास्ट में आ जाएगा. सो दैट्स हाउ पूरा लेट का सेंटेंस बना है. लेट फर्स्ट आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी ऐड होगा और वर्ब का पीपीटी हो जाएगा और फिर सब्जेक्ट यहां लास्ट में आ जाएगा. सो दैट्स हाउ वी मेक द सेंटेंसेस विद let into passive form. Now, the second type of sentence that we have to learn here is the sentence with WHO, who. Now you can see the sentence over here. There is one active sentence. Who broke this glass? ये glass किसने तोड़ा? Who broke this glass? Now it's obviously the sentence with WHO, who will be in a question form. वो एक question होंगे, इसलिए पीछे question mark लगा है. Now see, यहाँ हमको थोड़ी एक trick आजमानी होगी. I am giving you a simple trick. आप ये क्योंकि who वाले sentence they are difficult to make turn into passive. They are difficult to be turned into passive. So we have to use one trick. What is that trick? आप WHO, who वर्ड को एक सब्जेक्ट की तरह लेंगे. Forget that it's a question asked to you. भूल जाओ कि कोई क्वेश्चन पूछा है. WHO एक व्यक्ति का नाम है, ऐसा आप ले लो और समझ लो कि ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस, फुल स्टॉप वाला सेंटेंस. उसका आप पैसिव कैसे बनाओगे वो हम पहले सीख चुके हैं. तो क्या होगा? Who broke this glass? तो पहले तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा पैसिव में. ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ग्लास. उसको आप व्हाट पूछो कि क्या तोड़ा, तो ग्लास. ग्लास तुम्हारा ऑब्जेक्ट हुआ. ग्लास को पहले ले लो. ग्लास
was ऐड होगा क्योंकि सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। ग्लास was ब्रेक अपनी जगह आएगा नीचे, लेकिन पीपीटी में हो जाएगा ग्लास was broken by whom। who है वो लास्ट में चला जाएगा by whom और फुल स्टॉप। ये सेंटेंस तुम्हारा फाइनल आंसर नहीं है। ये जो हमने सेंटेंस बनाया ये तो काम चला हुआ, जस्ट अ ट्रिक। It is used to make the answer, find the answer easier। जैसे मैथ्स में आप स्टेप वाइज जाते हो, यहाँ भी एक सेंटेंस हमने बनाया which is not your final answer। ये रफ वर्क है, ध्यान रखना। एग्जाम में ये सेंटेंस बिल्कुल मत लिखना, लिखो तो आप पेंसिल से लिखना। बाद में फाइनल आंसर आ जाने के बाद उसको you must have to erase it। उसको आप मिटा देना इस सेंटेंस को। ये तो सिर्फ एक काम को आसान बनाने के लिए हमने यूज किया। Now, so what is this temporary sentences? Our temporary sentences. This glass was broken by whom? ये affirmative sentence बनाया क्योंकि who को हमने एक व्यक्ति ले लिया, तो who का क्या हो गया? By whom. Now see, our main sentence is of question। पीछे क्वेश्चन मार्क दिया, आप देख सकते हो, वो एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में तो by whom ये जो फ्रेज है सबसे पहले आएगा। आपको पता है सारे WH वाले वर्ड्स क्वेश्चन बनाते वक्त पहले आएंगे क्योंकि ओरिजिनल सेंटेंस क्वेश्चन में है, तो आंसर भी क्वेश्चन में ही होना चाहिए। ये बीच वाला सेंटेंस तो टेम्पररी सेंटेंस है। सो यू टेक दिस by whom एज ए फर्स्ट। अब हम अपना फाइनल आंसर लिख रहे हैं। by whom को क्या करो, सबसे आगे ले लो क्योंकि सारे WH वाले वर्ड्स क्वेश्चन में आगे आते हैं। by whom को आगे ले लिया और हेल्पिंग वर्ब was है, उसको भी आप क्या करोगे, by whom के बाद ले लो क्योंकि सारे हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन बनाते वक्त आगे चले जाते हैं। जैसे मैं पूछूं कि भाई आर यू ओके, आर आगे आए, उसका जवाब क्या होता है? यस आई एम ओके, आई एम ओके। एम बीच में आया, आई के बाद आया, लेकिन क्वेश्चन बनाते वक्त आर पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। इसको पूछना है कि भाई इज ही डॉक्टर, इज पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। इसी वजह से दैट्स व्हाई व्हाट वी डिड, वी पुट by whom first because it's a WH word, then we took this helping verb was also next to by whom। by whom के बाद तुरंत ले लिया वो helping verb, और बाकी सेंटेंस में कुछ करने का है नहीं। This will be your final answer। by whom was this glass broken। This glass broken जो आगे के सेंटेंस में टेम्पररी सेंटेंस में जैसा था ऐसा ही रखो, कुछ करने की जरूरत नहीं। और पीछे क्या करो, क्वेश्चन मार्क ऐड करो क्योंकि ओरिजिनल सेंटेंस क्वेश्चन में था, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क ऐड करना पड़ेगा। माय फ्रेंड्स, व्हाट वी हैव सीन हियर इन द सेंटेंस, देयर वाज वन सेंटेंस हु ब्रोक दिस ग्लास, उसका हमने काम चलाओ टेम्पररी सेंटेंस बनाया, हु को एक व्यक्ति की तरह ले लिया, उसका पैसिव बनाया, एफर्मेटिव सेंटेंस बना दिया by whom। है ना? This glass was broken by whom, है ना? एफर्मेटिव, ये काम चला सेंटेंस, उसका हमने फिर से क्वेश्चन किया, by whom को आगे लिया क्योंकि WH वर्ड है, सबसे पहले आएगा, उसके बाद was आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, बाद में आएगा, भी आगे आएगा लेकिन by whom के बाद आएगा। by whom was this glass broken। This glass broken को as it is अपनी जगह ही। That was the final answer। That's how all the who, WHO, who वाले questions इस तरह से passive में turn out होंगे। So that was all in today's session। I hope you like this session। See you in the next session। Thank you।